We'll start with some basic or easy examples and then we'll gradually increase the level of the questions. The first question reads as A salary is 25% of B salary, which is 40% of C salary. What percentage of A salary is, what percentage of C's salary is A salary? तो परसेंटेज का सवाल है, तो आई वुड से हर बार परसेंटेज में उस परसेंटेज के बेस पे फोकस करिए. A salary is 20% of B salary. तो इस 25% का बेस है B salary, which is 40% of C salary. तो इस 40% का बेस क्या है? C salary. Percentage always focus on the base. मतलब if C's salary is 100, if अगर C की सैलरी 100 रुपए है तो B की सैलरी कितनी हो जाएगी? B salary is 40% of C salary, तो B की सैलरी will be 40. यहां मुझे इनका रेशियो मिलेगा. If C salary is 100, तो B salary will be 40. And next, A's salary is 25% of what? 25% of B salary. So now think, what is the fraction of 25%? 25% is 1 by 4. So 1/4 of 40. So A's salary will be 10. 1/4 of 40 will be 10. And अब सवाल में ये पूछा है, what percentage of C salary is A salary? So what percentage of C's salary? So my base will be C's salary. ये हो जाएगी C की सैलरी. A की सैलरी है 10. आंसर परसेंटेज में चाहिए तो into 100 कर दो. और do I know the fraction of 1 by 10? Do I know the percentage value of 1 by 10? Yes. So 1 by 10 is 10%. मतलब A's salary is 10% of C salary. Let's see the next question. काफी इजी सवाल था तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. The next question. Let's say if I say if 80% of a number is added to 80, then the result is the same number. What is the number? What is the number? So now 80% of a number, 80% of a number. अब ये नंबर क्या है मुझे नहीं पता. So let's say the number is X. The number is X. 80% of a number. What is the fraction value of 80%? 80% is 4 by 5. So 80% of a number is added to 80. So it is added to 80. Then the result is the same number. तो इसमें 80 ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको? The same number, which is X. So 4 by 5 of X plus 80 is equals to X. कैलकुलेट कर लीजिए 4 by 5 of X. RHS में जाएगा, ये बनेगा -4 by 5 of X. X कॉमन हो जाएगा. 1 minus 4 by 5 of X. 1 minus 4 by 5, it will be 1 by 5 of X. So X will be 8 5s are 40. X will be 400. So my number is 400. So my number will be 400. Now let's see the third question. The third question reads as, if the
numerator of a fraction is increased by 15% and the denominator of the same fraction is decreased by 8%. The fraction becomes 15 by 60. Find the original value of the fraction. Find the original value of the fraction. So if the numerator of a fraction is increased by 15% and denominator of the same fraction is decreased by 8%, the fraction becomes 15 by 16. Find the original fraction. So let's say my original fraction b n upon d, numerator upon denominator, let the original fraction be n by d. तो अब सवाल में क्या बोला है? The numerator of a fraction is increased by 15%. 15% का increase. So now think, मुझे 15% का fraction value नहीं पता. So what? 15% will be 15 upon 100, right? 15% will be 15 upon 100. But the fraction is increased. तो अगर increase हो रहा है, this will be 1 plus 15 by 100. ये numerator को increase कर दिया 1 plus 15 by 100. Similarly, the denominator of the fraction is decreased by 8%. So 8% is 8 upon 100. It is decreased. So 1 minus 8 by 100. ये denominator. तो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 15% से इंक्रीज हो गया और डिनोमिनेटर 8% से घट गया. तो अब ये फ्रैक्शन बन रहा है 15 by 60. फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब आपको n अपॉन d इसी की वैल्यू निकालनी है. तो आप ये सोचो 100 विल बी एलसीएम, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 100 प्लस 15 डिवाइड बाय 100 एलसीएम होगा, 100 minus 8 divided by 100. So this will be 100 plus 15, 115, and this will be 92. ये जो डिवाइड बाय 100 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड बाय 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 100 by 15 and upon d is 15 by 16. And now 5 3s are 5 2s are 5 3s are 4 4s are 4 2s are 4 3s are, and ये 23 डिवीजन में कैंसिल आउट होगा, and the final value of n upon d will be 3 by 4. So my original value of the fraction is 3 by 4. Let's see the next question. The next question reads as, a student, instead of multiplying the number by 5,
divided the number by 5 by mistake. A student, instead of multiplying the number by 5, divided the number by 5 by mistake. Find the percentage of error made by him by mistake. Find the percentage of error made by him by mistake. तो स्टूडेंट को करना क्या था, उसे एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था, एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5 से। अब वो नंबर क्या है नहीं पता, कैलकुलेशन को यूज इजी करने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नंबर बाय x, टेकिंग द नंबर एज x, आई टेक द नंबर एज 100. लेट्स से इफ माय नंबर इज 100, आप x भी ले सकते हो, बट कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए मैं नंबर को x ले रहा हूं. तो उस स्टूडेंट को एक्चुअल में करना क्या था, उस स्टूडेंट को एक्चुअल में करना क्या था, उसे उस नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5 से. तो 100 को मल्टीप्लाई करना था 5 से, 100 इंटू 5, मतलब उसको एक्चुअल में बनाना था उसे 500. पर उसने गलती से क्या कर दिया, he divided the number by 5 by mistake. उसको एक्चुअल में करना था 500, पर by mistake he divided the number by 5. 100 divided by 5, 20. और अब सवाल में ये पूछा है find the percentage error made by. सो अब आप सोचो, उसको बनाना था 500, उसने बना दिया 20. तो कैन आई से एरर 500 माइनस 20, 480 का एरर हो गया. द परसेंटेज ऑफ एरर मेड बाय हिम इज 40. उसको बनाना था 500 और बन गया 20. तो आंसर जो परसेंटेज ऑफ एरर पूछा है, परसेंटेज ऑफ एरर. तो अब आप सोचो इस परसेंटेज का बेस क्या होगा, इस परसेंटेज का बेस क्या होगा. हमेशा परसेंटेज आप हमेशा याद रखिए, रेशो या परसेंटेज ये हमेशा एक कंपैरिजन होता है. एंड कंपैरिजन हम हमेशा किससे करते हैं, ओल्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू से. कंपैरिजन हमेशा होगा ओल्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू से. तो उसको एक्चुअल में कितना बनाना था, उसे बनाना था 500, उसे बनाना था 500. तो माय परसेंटेज एरर का बेस विल बी 500. आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 9 45, carry 3, 5 6. So my percentage error is 96%. My percentage error is 96%. अब अगर ये सोचो, इसी सवाल को अगर मैंने ये पूछा, a student instead of dividing the number, instead of dividing the number by 5, he multiplied the number by 5. तो अभी भी अब उसे एक्चुअल में क्या करना था, अब इस सवाल में उसे एक्चुअल में करना था इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द नंबर बाय 5, तो उसे एक्चुअल में करना था 20. और उसने गलती से कर दिया 500.
अब इस केस में भी एरर हो गया 480, इस केस में भी एरर हो गया 480। तो इस 480 का एरर का बेस क्या होगा? इस 480 का अभी भी 500 पे होगा क्या? नहीं। तो कंपैरिजन मैं वही बोल रहा हूं कि बेस हमेशा चेंज होगा। बेस नाउ विल बी द ओरिजिनल वैल्यू। उसको एक्चुअल में क्या करना था? उसको एक्चुअल में डिवाइड करना था 5 से। तो एक्चुअल में डिवाइड करता 5 से तो नंबर बनता 20। सो माय परसेंटेज ऑफ एरर वुड हैव बीन 0 0 कैंसिल 2 24 2400। So my percentage error is 2400। आई होप आप दोनों को आपको इन दोनों में का कंपैरिजन समझ में आया। न्यूमेरिकल एरर दोनों ही केस में सेम होगा 500 और 20। न्यूमेरिकल एरर इन दोनों में 480 का ही होगा, पर बेस क्या होगा? बेस हमेशा ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू होगा। पहले वाले सवाल में उसको एक्चुअल में करना था 500 तो बेस था 500, पर इस सवाल में उसको एक्चुअल में करना था डिवाइड बाय 5 तो माय बेस विल बी 20। आई होप आप सभी को लैंग्वेज के ऊपर या लैंग्वेज के बेसिस पे हम बेस कैसे शिफ्ट कर रहे हैं ये आपको समझ में आया। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स दैट a vendor sells 30% of his fruits and throws away 40% of the rest of his fruits. Next day he sells 50% of the remaining fruits and throws away the rest. What percentage of fruit does the vendor throw? Now let's say at start the number of fruits were X. मैक्सिमम लोग यहां पर x ही लेंगे, बट नाउ थिंक व्हाट इज दिस x? कैन आई से मैंने x ये वेरिएबल अज्यूम किया, और अगर मुझे नंबर ऑफ फ्रूट्स अज्यूम करना ही है तो मैं x क्यों लूंगा? आई टेक द नंबर ऑफ फ्रूट्स एज 100x। नाउ व्हाई 100x? क्योंकि 30% 30 अपॉन 100 वो 100 उसे कैंसिल आउट करेगा। तो अगर आपको कोई हमेशा वेरिएबल अज्यूम करना ही है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वेरिएबल x ऑलवेज टेक दिस एज 100x, क्योंकि वो 100 और इस परसेंटेज का 100 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा एंड आपके पास बचेगा एक नेचुरल नंबर या इंटीजर। सो नाउ थिंक, अगर उसके पास स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ फ्रूट्स वेर 100, a vendor sells 30% of his fruits, तो 100 में के 30%, 100 में के 30% मतलब उसने 30x बेच दिए, 30x बेच दिए, और 100 में के अगर 30x बेच दिए बचे कितने? 70x। 70x are the remaining fruits. And अब आगे क्या बोला है? He throws away 40% of the rest of the fruits. 40% of the rest. So now think, क्या यहां पर जैसे हम लोग ने 30% of 100 लिया, क्या यहां पर भी 40% of 100 ही होगा? नहीं, यहां पर उस परसेंटेज का बेस चेंज हो गया। 30% of what? 30% of his fruits. So 30% of it was 100. 30% of 100. But now this is 40% of rest of the fruits. So 40% of what? 40% of 70. तो यहां का 40%. 40%. तो 40% of 70x कितना होगा? 7 4s are 28. So this will be 28x. ये 28x उसने क्या किया? फेंक दिया, थ्रो। तो अब
उसने 70x में के 28x फ्रूट्स फेंक दिए, तो बाकी के बचे कितने फ्रूट्स? 70 माइनस 28, इट विल बी 42x, इट विल बी 42x। यहां बचे हुए फ्रूट्स 42x। अब आगे क्या बोला है? नेक्स्ट डे he sells 50% of the remaining fruits। तो अब इस 50% of what? 50% of the remaining fruits। तो 50% of what? 100? No। 50% of 30, 70 of 28? नहीं। 50% of the remaining fruits। तो remaining fruits कितने बचे थे? 42। तो इसका 50%, 50% का मतलब आधा, 42 का half will be 21x। So he sells 50% of the remaining। तो ये 21 बेच दिए, 42 में के 21 बेच दिए, तो बच्चे 21x। और अब सवाल में क्या बोला? एंड ही थ्रोज अवे द रेस्ट। तो ये जो बाकी के फ्रूट्स है ये भी इसने फेंक दी। और अब सवाल में पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रूट डज द वेंडर थ्रो। तो वेंडर ने व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 100x। ये होगा उसका बेस, ये होगा उसका बेस। और कितने फेंक दिए? 28x एंड 21x। तो 28 एंड 21 बनेगा 49x। x कैंसिल्स, आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, 100 कैंसिल। तो 49% ऑफ द फ्रूट्स उसने फेंक दिया। सो माय आंसर विल बी 49% ऑफ द। आई होप आपको यहां समझ में आया होगा कि हर एक परसेंटेज का बेस कैसे चेंज हो रहा है। हर बार जरूरी नहीं कि बेस इनिशियल नंबर ऑफ फ्रूट्स का ही होगा। यहां हर बार रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स, रिमेनिंग फ्रूट्स बोला तो बेस विल चेंज अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अ कैंडिडेट हु गेट्स 30% ऑफ टोटल मार्क्स fails by 14 marks, but another candidate who gets 45% of total marks gets 16% more than the passing marks. Find the total marks. Second, find the passing marks. So now, let's say my total marks. I need some space. So let's say my total marks। अब यहां पर आप लोग x अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई अज्यूम 100x। मुझे नहीं पता कि टोटल मार्क्स कितने हैं, सो आई अज्यूम 100x। why 100? 30 डिवाइड बाय 100 into 100, 100 will cancel। Similarly 45 divided by 100, 100 will cancel। So let's say my total marks are 100x। A candidate who gets 30% of total marks fails by 14 marks। So 30% of the total, I know total marks are 100, so 30% of total 100 का 30% will be 30x। तो सवाल में ये बोला जब मैं 30x भी स्कोर कर रहा हूं ना, आई एम फेलिंग बाय 14 मार्क्स। तो अब आप सोचो 30x स्कोर करने के बाद भी 14 मार्क्स से वो फेल हुआ, मतलब 14 मार्क्स उस कैंडिडेट को कम मिले हैं। तो कैन आई से जब मैं इस 30x में 14 मार्क्स ऐड कर दूंगा तो वो कैंडिडेट पास हो जाएगा और मुझे यहां पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। He failed by 14 मार्क्स, 14 मार्क्स कम है, तो अगर मैं उसमें 14 ऐड कर दूंगा तो वो जस्ट पास हो जाएगा और मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट
another candidate who gets 45% of total marks. 45% of total. I know total was 100x. So 45% of total. It will be 45x. And he gets 16 marks more than the passing marks. Passing marks से उसको 16 marks ज्यादा है. तो कैन आई से इसे 16 मार्क्स ज्यादा है. तो अगर मैंने -16 कर दिया तो मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे. इस केस में पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे. इन दोनों में RHS इक्वल है. RHS इन बोथ द केसेस इज पासिंग मार्क्स. तो अगर RHS इक्वल है, LHS भी इक्वल होना चाहिए. So my answer will be 30x plus 14 is 45x minus 16. Minus 16 यहाँ के बनेगा plus 16, 16 plus 14, it will be 30. 30x वहां जाके बनेगा minus 30x, 45 minus 30, it will be 15x. So x will be equals to and एक बार मुझे x की वैल्यू आ गई. द टोटल मार्क्स मैंने लिए थे 100x and I know x की वैल्यू is 2, so my total marks will be 200. The total marks will be 200. And next the passing marks के लिए चाहे पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो, आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे. x की वैल्यू 2, 32 60, 60 plus 14, it will be 74. या अगर आप सेकेंड इक्वेशन में भी डालोगे 45 into 2, it will be 90, 90 minus 16, 90 minus 16, it will be 70. आंसर दोनों ही इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में प्लग इन कर दो, आंसर चेंज नहीं होगा. सो पहला सवाल, द टोटल मार्क्स आर 200 एंड नेक्स्ट पासिंग मार्क्स आर 74. इसी सवाल को बनाने का एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं स्केल मेथड. So let's say ऐसे मैं हटाता हूं. Let's say मेरे पासिंग मार्क्स स्केल पर एग्जाम में स्केल बनाने की जरूरत नहीं है. अगर आपका आइडिया क्लियर है तो आप डायरेक्टली ये सवाल बना सकते हो. सो नाउ लेट्स से नंबर लाइन पे अगर पासिंग मार्क्स यहां पर है तो सवाल बोला द स्टूडेंट फेल्ड बाय 14 मार्क्स. तो अगर मैं 14 मार्क्स से फेल हो रहा हूं, 14 मार्क्स फेल, तो मुझे 14 मार्क्स कम है. 14 मार्क्स कम है. पासिंग मार्क्स से मुझे 14 मार्क्स कम है. तो मैं लेफ्ट में आ रहा हूं स्केल पर. नंबर लाइन पे आप हमेशा ये सोचिए, जब मैं नंबर लाइन पे राइट में जाता हूं नंबर्स इंक्रीज होते हैं, और जब मैं नंबर लाइन में लेफ्ट में आता हूं नंबर्स डिक्रीज होते हैं. सो वैसे ही नंबर लाइन पे अगर मैं पासिंग मार्क्स से लेफ्ट में आ रहा हूं 14 मार्क्स लेस, तो मेरा स्कोर यहां पर है 30% ऑफ टोटल मार्क्स. एंड जब मुझे 16 मार्क्स ज्यादा है, पासिंग मार्क्स से 16 मार्क्स ज्यादा है, तब आई एम स्कोरिंग 45% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स. एंड नाउ थिंक, अब इसको डिस्टेंस के तौर पे सोचिए. 30% से 45%, लेट्स से मैं वॉक कर रहा हूं 30% से 31, 32, 33, 34. सो 30% से 45%, ये डिस्टेंस कितना हो गया? कैन आई से दिस डिस्टेंस विल बी 45 minus 30. This is 15%. 15% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स. इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 16 minus 14.
विल इट बी 2? नहीं। अब आप सोचो, आप यहां पर रुके हो, आप 14 स्टेप्स पीछे जा रहे हो, 14 स्टेप्स पीछे आप यहां आ गए, एंड देन स्टार्टिंग पोजीशन से 16 स्टेप्स आगे चले गए, तो पीछे 14 और आगे 16, ये टोटल डिस्टेंस क्या 2 स्टेप्स का होगा? नहीं, द टोटल डिस्टेंस विल बी 16 एंड 14, 30 स्टेप्स, इट विल बी 30 स्टेप्स। और आप ये सोचो, आपने ये किया 45 माइनस 30 is 15, सिमिलरली 16 minus of minus 14, it will be 16 plus 14, 30. So 15% of total marks, 15% of total marks is 30. So 15 upon 100 into total marks is 30. 15 2s are 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो my total marks will be 200. My total marks will be 200. My maximum marks या total marks will be 200. मेरा पहला आंसर बन गया टोटल मार्क्स। एंड नाउ पासिंग मार्क्स। तो अब आप सोचो, मेरे को पासिंग मार्क्स निकालना है 45% ऑफ 200, किसी भी सिनेरियो से आंसर निकाल सकते हैं। 45% ऑफ 200, 45 अपॉन 100 इंटू 200, इट विल बी 90, इट विल बी 90। तो अब आप सोचो 90 से आप 16 स्टेप्स पीछे आ रहे हो, पीछे, तो 90 से 16 स्टेप्स पीछे आ रहे हो, तो माय पासिंग मार्क्स विल बी 74। और अगर आपको इस वैल्यू से निकालना है 30% ऑफ 200, 30% ऑफ 200 विल बी 60, और आप यहां से आप 14 स्टेप्स आगे चल रहे हो, 60 से 14 आगे, तो 60 प्लस 14 इट विल बी 74। तो आंसर दोनों ही सिनेरियोज में आएगा, फर्स्ट केस या फर्स्ट वे या सेकेंड वे। वो आपके ऊपर है कि आप एग्जाम में कौन सा तरीका यूज करते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।